All right. So it is official now. Samrat Chaudhary has now taken oath as the Bihar Chief Minister. And this has now happened where the Nitish era has now come to an end. Nitish Kumar, who has been Chief Minister for the last 21 years, he tendered his resignation, which was accepted by the Lieutenant General retired Governor Syed Ata Hasnain and Deputy CM Samrat Chaudhary. Till he was in that position, a short while back, he has now been elevated also to the BJP's legislature party leader as well. So this is historic in a way as far as regional parties now are concerned. Well, that seems to be now giving way to the BJP until the recently held elections in Bihar. And now Samrat Chaudhary is officially the Chief Minister of Bihar after he was elected as BJP's leader of the legislative party in the state. And this is for the first time, as we talk about the Janta Parivar in electoral politics as well, for the first time that the BJP is to have a Chief Minister in the state. राज्यपाल सचिवालय बिहार दिनांक 14 अप्रैल 2026 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। Other leaders as well who are now taking oath as part of the new Samrat Chaudhary cabinet that is now seemingly because Samrat Chaudhary, who is now officially the BJP Chief Minister of the state of Bihar, and there are others as well who are now being sworn in. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. Oath of secrecy. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। Bihar gets its first BJP-led government after Samrat Chaudhary has now just taken oath. There are other leaders as well who now will be incorporated in the new Bihar BJP cabinet. And this appointment that follows Nitish Kumar's resignation after he was elected as the Rajya Sabha member. And Samrat Chaudhary, who's been
elected as the BJP's legislative party leader as well. Following the meeting that happened with the party MLAs, as the BJP is also finished to be the single largest party with 89 seats after the recently concluded Bihar Assembly elections. And this is something where Samrat Chaudhary had also been on his social media post, has been thanking the BJP leadership for giving him this opportunity as far as his elevation from a deputy CM to the CM's position is also concerned, where he has thanked Prime Minister Narendra Modi and also the BJP chief Nitin Nabin. Now, as far as the resignation of Nitish Kumar is concerned, that marks as an end of an era in the state's politics, with the BJP leading the state government with its own chief minister for the first time in the state. And Nitish Kumar, who had served as a chief minister for over 2 decades and, taking the oath for the record 10th time. And also, as far as this inclusion is now concerned, well, this has now been looked upon as a big change. एक इरा का खत्म होते हुए अमित और एक नई शुरुआत होते हुए बिहार को अब नया सम्राट मिल गया है। सम्राट चौधरी ने अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के। जी देखिए, मुझे लगता है कि इसको अगर शुरुआत से देखें कि 2005 का जो दौर था, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर गए थे, तो यहीं पर वो रहते थे। जब वो यहाँ से उनको जाना था, उस शाम को हम लोग उनके घर पर आवास, सरकारी आवास पर मिले भी थे। वहां से वो बिहार के लिए रवाना हुए थे और इसके बाद अगले 2 दिन बाद उन्होंने शपथ ली थी। और उसके बाद जो बदलाव देखा हम लोगों ने, क्योंकि बिहार में जो राज था, जो लालू का राज था, 15 साल का राज था, जिसको जंगल राज लोग कहते हैं, उस दौर को हम लोगों ने देखा है। और कहा जाता है कि हम लोग ने उस दौर से बाहर निकल के, उस समय जो पलायन की जो शुरुआत हुई, उस दौर से लोग जो निकलना शुरू हुए, एक कहा जाता था कि बिहारी एक गाली हो गई थी, कि लोग किसी को अगर बिहारी कहते थे तो उसको ये वो जैसे मुझे कोई बोले कि तुम कहां से हो, तो मैं बिहारी बोलने में मुझे उस समय शर्म आती थी। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार ने उन 5 साल, जो पहला 5 साल था, मुझे लगता है वो नीतीश कुमार का एक गोल्डन पीरियड था, जिस पर एक बुनियाद जो होती है कि विकास की, गवर्नमेंट की, उन्होंने तैयार की। और इसके बाद जो आगे बढ़े, अगले 20 साल तक वो शासन किए। तो बिहार में अगर नीतीश कुमार की सबको आदत पड़ गई है, आप कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान भी कुछ भी बात हो, या किसी के साथ हो, या लालू के साथ हो, या फिर बीजेपी के साथ हो, जो वोट पड़ता था वो नीतीश कुमार के बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अमित भाजपा ने, जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार का ही नाम सामने रखा था, तभी तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन पाए थे, लेकिन ज्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं। और हमेशा से एक बार को छोड़ दिया तो लगभग हर बार बीजेपी बड़ी पार्टी थी। अगर नंबर्स की बात करें तो बीजेपी बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन बीजेपी ने हमेशा इसके बावजूद खुद को छोटा बनाकर नीतीश कुमार को बड़ा किया, उनके चेहरे को बड़ा किया। और देखिए, मुझे लगता है शायद यही बात है, यही एक रिश्ता था कि इतने आसानी से सत्ता परिवर्तन हो पाया, क्योंकि पिछले 20 साल से अगर नीतीश कुमार बने तो उसमें एक बड़ी भूमिका बीजेपी का समर्थन था। एक अलायंस पार्टनर के तौर पर एनडीए में बीजेपी ने खुले हाथ से उनको समर्थन किया, उनके हर फैसले में साथ थे। और बड़ी पार्टी, जैसे पहली बार भी जो सरकार बनी थी, संख्या ज्यादा थी बीजेपी के पास, लेकिन इसके बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी के दौर में कहा गया था कि सीएम अगर कोई होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे। तो अगर नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू बने, एक विकास का एक नया डेवलपमेंट मॉडल अगर बिहार में नीतीश कुमार ने दिखाया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनको पूरा समर्थन एनडीए में बीजेपी ने किया। और मुझे लगता है कि ये जो 20 साल बाद, और निश्चित तौर पर पार्टी के तौर पर बीजेपी ग्रोथ कर रही थी, बड़ी पार्टी हो रही थी, और एक दिन ना एक दिन सत्ता में आना था, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार थे तब तक नीतीश कुमार के तौर पर जेडीयू सबसे बड़ी थी। लेकिन एक समय आना था और नीतीश कुमार ने इस बात को एहसास भी किया कि अब उनको स्वास्थ्य के रूप में अब उस तरह से समर्थन नहीं मिल रहा है। सम्राट चौधरी अमित, क्योंकि लगता है कि उनके साथ और भी कई अन्य लीडर्स हैं जिन्होंने भी अभी ओथ में अभी हिस्सा लिया है, वो भी शामिल अब नए होंगे नए सम्राट चौधरी कैबिनेट में। नहीं, देखिए, मुझे लगता है हो सकता है कैबिनेट में जो मंत्री होंगे उसको बनने में, उसको उनका नाम तय होने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि चुनाव भी है, जो बाकी राज्यों में जो चल रहे हैं, तो हो सकता है उसमें देरी हो। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी पहली बार सरकार में आई, और चुनौती यही होगी। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इनके पास जो होगी वो लॉ एंड ऑर्डर को होगी, क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 2-3 चीजें हैं। अगर आप देखिए तो डेवलपमेंट तो मुद्दा है ही, कई ऐसे जगह है, सड़क से लेके रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमेशा कहती रही कि अगर आप स्टेट में डेवलपमेंट देंगे तो लोग कोई यहां से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो तुरंत एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अगर अपनी पहचान बनानी हो, और सम्राट चौधरी को हम लोग जब भी यहां पर मिले हैं या पटना में मुलाकात हुई, तो हमेशा से
से वो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने गए हैं जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। मुझे लगता है कि उनको जो मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया उसके पीछे बड़ी वजह यह भी रही है कि उन्होंने बहुत कम समय में, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया पार्टी में, तब उन्होंने एक अलग अपनी छाप छोड़ी। कि इससे पहले बीजेपी कई अध्यक्ष थे, लेकिन कोई भी नीतीश के दौर में या नीतीश के खिलाफ भी एक विरोधी चेहरे के तौर पर या फिर एक बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर सुशील मोदी के बाद कोई अपने आप को उभर कर उस तरह से नहीं एस्टैब्लिश कर सुशासन पाया। बाबू की जो लेगेसी है, क्या वो सम्राट चौधरी सक्सेसफुली आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि बिहार हैज नाउ गॉट अ न्यू सम्राट as far as Samrat Chaudhary, who has now just taken oath as the Bihar Chief Minister, and this marks as a significant shift when it comes to the politics in Bihar. धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए. Well, that is a major political shift there. Let's in the meantime talk about the other political shift this morning, because the Lok Sabha, which is all set to expand from 543 to 850 seats, and this is the much awaited